2 days after the shocking death of a Noida techie, Chief Minister Yogi Adityanath has ordered a special investigation team to probe the death and allegations of criminal negligence. The SIT has been formed under the leadership of the Divisional Commissioner of Meerut. Besides the Divisional Commissioner of Meerut, the Additional Director General of Police, Meerut Zone, and the Chief Engineer of the Public Works Department are also part of the SIT. The SIT has been ordered to conduct the investigation and submit its report to the Chief Minister within 5 days. Major revelations have emerged from victim Yuvraj's post-mortem report. The report says Yuvraj died due to cardiac arrest triggered by nearly 2 hours of being trapped in ice-cold water amidst extreme weather. Officials add that severe panic and fear for life likely led to the fatal collapse. Earlier, the Noida authority took punitive action over negligence in the case. Show cause notices have been issued to officials and employees linked to traffic works in Sector 150. The services of junior engineer Naveen Kumar attached to the Noida traffic cell have been terminated with immediate effect. The authorities also sought a detailed report on allotment and construction work of Lotus Builders. All departments have been directed to conduct fresh safety audits to prevent such tragedies in the future. Techie Yuvraj Mehta was returning home from work when his car lost control in heavy fog and fell into a 20-foot deep pit dug at an under-construction site. A search operation was launched after police received information at around 12:15 a.m. and his body was recovered on Saturday morning. Multiple rescue teams were deployed, but an eyewitness alleges delays, claiming that the techie was seen standing on his car and signaling for help. Police have denied negligence, citing poor visibility and dangerous conditions inside the pit. An FIR has been filed against 2 builders following a complaint by the family. Investigations are ongoing. नोएडा सेक्टर 150 के निर्माणाधीन बेसमेंट का ये जो गड्ढा है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उसकी गिरने से मौत जो हो गई थी, उस मामले में नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। नोएडा अथॉरिटी ने इसमें जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है और बाकी के जो लोग यातायात संबंधी कामों में जो लगे हुए थे उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। आपको मैं घटना की अगर बात करूं तो 17 तारीख को करीब 12:15 के आसपास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता जो है वो अपनी कार से आ रहे थे, अपने घर जा रहे थे और उस वक्त कोहरा इतना ज़्यादा था। ये आप जो सामने रोड देख रहे हैं, इसी रोड से वो सबसे पहले जो हाईवे से उतरते हैं और इसी रोड से अंदर आते हैं। तो यहाँ से वो अपने घर को जा रहे थे और 12:15 के आसपास जो है रात का वक्त था और घना कोहरा था, घना अंधेरा था। उस वक्त वो ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिखता। वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी उस वक्त जो अभी ये जो लगाई गई है बैरिकेडिंग, आप देखिए उस वक्त कोई भी बैरिकेडिंग नहीं थी। ये जो आप देख रहे हैं ये तो बाद में अथॉरिटी ने लगाई है, लेकिन उस वक्त तक कुछ भी यहाँ पर नहीं था, कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। तो गाड़ी जो आती है सीधे ये पता नहीं होता कि कहाँ से मुड़ना है और कहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ से गाड़ी निकल रही होगी तो यहाँ उसको पता ही नहीं चला और वो यहाँ से जिसे टूटा हुआ भी आप देख सकते हैं साफ साफ। तो यहाँ इस नाले से गाड़ी निकलते हुए उस पानी में जाकर गिरी। 70 फीट चूँकि इसमें खुदाई की गई है तो 70 फीट गहरे ये जो पानी भरा हुआ जो इलाका है इसमें वो गिर जाता है और बार बार वो टॉर्च जलाकर लोगों से बचाव की भी गुजारिश करता है, लेकिन उस वक्त समय पर कोई भी बचाने के लिए नहीं उतर पाता। वो अपने पिता को भी फ़ोन करता है, उनसे भी कहता है कि मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि उसको बचाया नहीं जा सका। While the authorities failed to save Yuvraj, a delivery executive called Moninder rushed to the spot after receiving information. By the time he arrived, the car had already submerged. Moninder says the fire brigade hesitated to enter the water. He took a rope, climbed down himself and searched the pit for nearly 40 minutes. But it was too late. Moninder believes the tragedy was completely avoidable. मोनिंदर हमारे साथ हैं जिन्होंने कोशिश की बचाने की युवराज को, लेकिन वो भी बचा नहीं पाए। तो मोनिंदर पूरी घटना क्या थी, आप कहाँ जा रहे थे, रुके कैसे, क्या दिखा आपको उस वक्त? मैम ये 16 तारीख की रात को घटना है 12 बजे की। धुंध बहुत ज़्यादा थी,
धुंध के कारण युवराज गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, मोड़ को नहीं देख पाया। यहाँ पे कोई डिवाइडर नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल प्लेन है, नाला आप दिखा सकते हैं। गाड़ी सीधी ना इस जोड़ में दाग चुकी थी। गाड़ी दागने के बाद उस लड़के ने अपने पिताजी के पास भी कॉल किया कि पापा मैं किसी नाले में गिर चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ गिरा हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हेल्प करो। उसके पिताजी भी आए हैं, सब चीज़ हुई है। लड़का कम से कम 1.5 से 2 घंटा जीवित रहा है, गाड़ी के ऊपर बैठा है। गाड़ी भी नहीं डूबी, गाड़ी में पानी नहीं भरा था, गाड़ी के ऊपर। कहाँ से रहे थे? हाँ जी, कहाँ से आ रहे थे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो, गुड़गांव से आ रहा था। टाटा योरका पार्क में टावर नंबर 201604 में वो रहते हैं। अच्छा। जी, तो उन्होंने, पुलिस आई, पिताजी आए, उनके पुलिस प्रशासन भी मौके पे आ गए थे हालांकि, लेकिन पुलिस के पास वो साधन नहीं थे जो गाड़ी को और लड़के को बचा सकते हैं। क्यों, कुछ उनमें कुछ बुजुर्ग अवस्था में भी थे पुलिस वाले, जो नौजवान थे एक दो, तो उन पर तैरना नहीं आता था। तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल किया था। फायर ब्रिगेड आई थी। फायर ब्रिगेड पर जितने भी फायर ब्रिगेड वाले थे उनके पास नाव थी, सेफ्टी जैकेट थी, 100 मीटर का रास्ता था, लेकिन वो ये चीज़ कह रहे थे बार बार पानी बहुत ठंडा है, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, वो जा नहीं रहे थे अंदर। उनने ड्रामा क्या हो, जब इसमें सिड्डी गेर के वो सिड्डी पे बैठे, बाकायदा वीडियो है कि मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा, सिड्डी पे बैठे हैं और वो लड़का आग सामने से टॉर्च मार रहा है। हाँ, इधर पे, हाँ। वो लड़का सामने से टॉर्च मार रहा था कि प्लीज हेल्प करो, और वो फायर ब्रिगेड वाले सिड्डी पे बैठ के तमाशा बना रहे थे कि ठंडा पानी। वो मैं आता हूँ 1:40 पे, 12 बजे का लड़का गिरा हुआ था। मेरे आने से 10 मिनट पहले लड़का डूबा कितने है। बजे आप आए? 1:40 पर मेरे आने, मैंने आके देखा कि फायर ब्रिगेड वाले फिर भी पानी में नहीं दाग रहे हैं, लड़का डूब चुका था, उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई थी। मैं बोला कि जी मैं जा सकता हूँ अंदर। वो बोल रहे हैं आप कैसे चले जाएंगे? मैं कहा जी मुझ पे तैरना आता, मैं जा सकता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी पे जाएंगे। मैं कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ठंडा पानी है वगैरह वगैरह मुझे बताया उन्हें। मैं को कोई दिक्कत नहीं है, आप इजाज़त दो, मैं जा सकता हूँ। उस वक्त उनके पिता आ चुके थे? जी, पिताजी मौके पे थे। पिताजी ने अपने बेटे की लाइव मौत देखी थी।